Only Lokesh. Look this. Today is our next topic. Topic name is topology. Clear? Definition of topology is that the physical arrangement of components such as computers and its peripheral and cables required to set up a network is called a topology. Topology क्या है? आपका जो physical components है, physical components like your hardware, your other resources like printer, these are connected through the cables. तो आप किस फॉर्म में से कनेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर एरिया, रूम कैसा है आपका, ठीक है, सर्कुलर मैनर में करना है, रेक्टेंगल मैनर में करना है, ठीक है, मींस रिंग टोपोलॉजी लगानी है आपने, बस टोपोलॉजी बनानी है, सिंगल लाइन बनानी है, दैट में हमारी, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस. तो वो डिपेंड करता है. तो मींस फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट लाइक कंप्यूटर्स, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और केबल्स को कनेक्ट करने का मीडियम है. देखा है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स सच एज कंप्यूटर्स एंड इट्स पेरिफेरल्स. पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज व्हिच आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू योर कंप्यूटर सिस्टम लाइक कीबोर्ड. कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस. माउस इज आल्सो अ पेरिफेरल डिवाइस. And printer, scanner, these are also a peripheral device which are connected externally. So here peripheral and cables are required to set up a network. Okay, so this we can set up our network. This is called topology. Here we have different kinds of topology. So one by one we have to discuss these one. First topology name is bus topology. Okay, here we will use a single cable. This single cable is called backbone of the network. If this cable is damaged, then whole network is not working. Whole network कोई काम नहीं करेगा, केबल ही खराब हो गई आपके में. ठीक है, तो देखते हैं. All the devices, computers or nodes, either you say devices or you say networks, sorry nodes or you say computers, all are same. On a bus topology are connected by one single cable. ठीक है, means all the devices like this one, all the devices, all the computers, all the nodes are connected by a single main cable. This main cable is called backbone of this network. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी होगा. Clear? This single cable is known as main cable or backbone. ये जो सिंगल केबल जा रही है, that is called main cable or backbone. Clear? The nodes are connected to the main cable called drop cable. Means remaining cable which are used to connect your device to the main cable is called drop cable. Like this. ये वाली drop cable है, ये drop cable है. ये जो छोटी-छोटी cables आ रही है, this is called drop cable. Drop cables are used to connect your PC, means your computer, to the main cable. Clear हो गया? After that, when one computer send a signal up the wire, all the computers on the network receive the information. All the computers can receive the information. Like this one. First computer wants to send data or information. So it will send data this on this cable. केबल पर जाएगा. ठीक है, अब कौन रिसीव कर सकता है? ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कोई सकता है, बट जिसके लिए बनी होगी वो इसे रिसीव करेगा, बाकी छोड़ते जाएंगे उसे. ठीक है, सेम यही लिखा होगा. बट ओनली वन कैन एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. बट ओनली वन कैन एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन जिसके लिए हमने सेंड करी है. मींस रिसीवर कैन एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो टारगेट पर्सन होगा उसी के लिए, जिसके लिए हमने मैसेज सेंड किया है, वही रिसीव करेगा, बाकी लोगों से नहीं करेंगे. हाउ वी आइडेंटिफाई दिस? दिस इज अ रिसीवर, या यही टारगेट पर्सन है. अकॉर्डिंग टू द एड्रेस नंबर, मींस सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. आपने पढ़ा था, व्हेन यू वांट टू सेंड योर डेटा, लार्ज डेटा, ठीक है, तो योर लार्ज डेटा इज डिवाइडेड इनटू पीस, दैट इज कॉल्ड पैकेट्स. Each packet gets the packet number, sender's address और receivers address. जैसे कि आपने मूवी डाउनलोड करी है, एग्जांपल आपने देखा होगा, मूवी डाउनलोड की है, तो यू हैव अ सॉफ्टवेयर लाइक BitTorrent, uTorrent आता है कुछ. ठीक है, टोरेंट पे लगाते हो तो मूवी जैसे आप लगाई तो लाइन्स बार बन के आती है. क्या कभी लाइन्स सीक्वेंस आ जाती है? नहीं आती है. रैंडमली मींस
फिर सेंटर पे आ जाएगी, इधर राइट पे आ जाएगी। ये तो मींस योर लार्ज इंफॉर्मेशन, जो बड़ी इंफॉर्मेशन है, मींस लाइक 230 MB, 500 MB, 1 GB इंफॉर्मेशन आ रही है, लार्ज इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल स्मॉल पीस, दैट इज कॉल्ड पैकेट। पैकेट बढ़ गया। पैकेट में क्या होगा, ऑल द पैकेट्स आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, मे बी लास्ट पैकेट का साइज डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है बिट्स पे या बाइट्स पे। लाइक मेरे पास 300 MB का डाटा है, 3 MB 300 MB, तो मे बी 100 100 100 में डिवाइड कर लो, मे बी 10 10 10 में डिवाइड कर लो, और मे बी आप 8 8 8 में डिवाइड कर लो। वो डिवाइड करने गया, लेकिन लास्ट वाले में इक्वल साइज नहीं आया तो हो सकता है बाकी समझ में कोई आएगा। ठीक है, तो पैकेट का साइज लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट को इसी के पास जाना, क्योंकि पैकेट तो अलग हो गया, पैकेट आपके अलग हो गए, तो ईच पैकेट गेट्स देयर पैकेट नंबर। तो आपने देखा था 12, वो 12 आया कहाँ पर लगा, एकदम बीच पे लग गया, बीच में आया। फिर नेक्स्ट पैकेट आया वो लेफ्ट साइड पे आ गया, नेक्स्ट पैकेट आया वो राइट साइड पे लग गया, देन अगला पैकेट आया वो राइट और मिडिल के बीच में लग गया, मिडिल के बीच में कहीं पर भी लग सकता है। ठीक है, एट द एंड दे विल अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर पैकेट नंबर, कि कौन सा किस प्लेस वाला। लाइक कभी कभी आपने देखा होगा नेटवर्क की स्पीड बहुत तेज रहती है, तो लास्ट वाला पैकेट पहले पहुंच गया, ऐसा होता है। ठीक है, और पहला वाला जो पैकेट आना होता है वो लास्ट में आता है, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, स्पीड बीच में वैरी करती रहती है, ऐसा होता है। लेकिन जब सारे पैकेट आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पैकेट नंबर दे क्या होता है, रीअरेंज। ये जो होंगे रीअरेंज कब होंगे, पैकेट नंबर के बेस पर रीअरेंज होंगे। कहाँ पर होंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस पर रीअरेंज होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि जो इंफॉर्मेशन है, डेटा, वो पूरी वायर में ट्रेवल कर रहा है, बट रिसीव कौन करेगा, रिसीव वही करेगा जिसका एड्रेस में लिखा हुआ है कि इसके पास जाना चाहिए। तो एवरी सिस्टम हैज देयर ओन आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम का अपना अपना एड्रेस होता है, उसी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। क्लियर, लाइक यू वांट टू सेंड ईमेल, तो यू हैव टू राइट टू में लिखते हो जिसको भेजना है, ईमेल एड्रेस उसका लिखते हो, तो आपने क्या दे दिया, उसका नंबर दे दिया, उसका आईडी दे दिया। ठीक है, अब वो पूरे नेटवर्क में सर्च करता है कि ये आईडी किसके पास है, सिर्फ उसी के पास जाएगा, वरना नेटवर्क से नेटवर्क होते हुए जाता है, पैकेट जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे नेटवर्क में मिल जाएगी ना, लेकिन जाएगी किसके पास, उसी के पास जाएगी जिसकी आईडी आपने लिखी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, when one computer send a signal up the wires, all the computers on the network receives the information, but only one accept the information. Only one accept the information means इसके लिए बना है, सिर्फ वही रिसीव करेगा, बाकी रिसीव नहीं करेंगे। Clear? After that, one computer can send a message at a time. वन कंप्यूटर सेंड मैसेज एट अ टाइम, एक ने एक बार भेज दिया तो बाकी लोग नहीं भेजेंगे उसको, बिकॉज ऑफ कोलिजन ना हो जाए, कोलाइड ना करे, मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो गया तो पैकेट लॉस हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। देन a computer must wait until the bus is free before it can transmit. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन याद होता है कि सर हाउ वुड आई नो दिस बस इज फ्री और नॉट, केबल फ्री है मुझे कैसे पता है, किसने भेजा किसने नहीं भेजा, आपको नहीं पता, लेकिन नेटवर्क को सब पता है। आपने सेंड किया, वो कहीं ना कहीं क्यू में लगा देगा, जब फ्री होगी तभी आपका डेटा सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा होगा। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अंदर कैसे काम हो रहा है केबलिंग में। मैंने लिखा when the signal reaches at the end of the wire, when the signal reaches at the end of the wire, it bounces back and travels back up the wire. What it means this type of cable work like a unidirectional mirror, like a unidirectional। मैं बाईडायरेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाईडायरेक्शनल में काम कर रही है, लेकिन किस तरह से, देखो मान लो इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है और जाना इसके पास चाहिए था, ये डेटा ट्रैवल कर रहे हैं इसमें, ये राइट साइड को कर रहा है ऐसे, पहले मतलब ये डेटा इसने ऐसे भेजा, तो जब ये भेजता है तो इसके पास पहुंच जाएगा, नेक्स्ट वाले के पास भी, नेक्स्ट वाले के पास भी, यहाँ भी कहीं भी पहुंच सकता है। बट ये सेंड करना चाहेगा तो कैसे जाएगा, इसके लिए क्या इधर हो जाएगा, नहीं, इसके लिए भी इधर ही रहेगा, इधर ही आएगा पहले, लेकिन केबल का एंड कहाँ मिला, यहाँ मिला, जैसे एंड पे पहुंचा ये बाउंस करेगा और फिर पीछे हो जाएगा,
रिवर्स जाएगा। तो एक तरह से यूनि डायरेक्शनली चल रहा है, लेकिन एंड पे जब सिस्टम नहीं मिला तो बाकी पूरी केबल को चेक करेगा, जब उधर भी नहीं मिलेगा देन वो कहेगा पहुंचेगा ही नहीं, ऐसे तो एड्रेस नॉट फाउंड कहेगा। सर्वर सर्कुलर में कैसे, मतलब ये तो केवल सर्कुलर है ही नहीं ना, लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन तो है। हाँ लगा सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी आएगी आपकी, टोपोलॉजी अलग अलग है। अभी टोपोलॉजी आपकी चलिए बस टोपोलॉजी, हियर वी हैव अ मेन केबल बस, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज इजी टू एक्सटेंड। मान लो एक कंप्यूटर आपको और लगाना है, केबल और बढ़ा दो आगे, तो कुछ करना ही नहीं, एक केबल और बढ़ा दो, एक सिस्टम और लगा दो, बन गया इजी टू एक्सटेंड। देखो उसमें एडवांटेज लिखे होंगे। Advantages of bus topology. The bus is simple, reliable, in small network, easy to use and understand. ठीक है, सारे पॉइंट्स ये इजी टू अंडरस्टैंड है, रिलायबल है, आसानी से यूज हो जाती है, ठीक है, सिंपल है, स्मॉल नेटवर्क में काम। नेक्स्ट, रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड लेस एक्सपेंसिव, लेस नंबर ऑफ वायर्स, लिमिटेड वायर्स के थ्रू हम नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अभी आपने घरों में लाइट लगाई होगी, लगाई थी, बहुत सारी लड़ियाँ थी आपके पास, आपने क्या करा, एक वायर खींचे से 5 मीटर की 10 मीटर की लगाई, उसको कट मारे बीच में और केबल जोड़ते चले गए, जितने भी आपके पास केबल थी, ऐसे कुछ किया होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हियर यू हैव टू यूज वन बस, एक बैकबोन बनाई आपने और बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर्स में कनेक्ट करते चले गए, तो वायर कम लगी, वायर कम लगी, वरना तो हर एक केबल को कनेक्शन देना पड़ता, हर एक केबल को कनेक्शन देना पड़ता, बहुत लंबा लग जाता, ठीक है। तो ये इजी और लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव इज लेस नंबर ऑफ, लेस लेंथ ऑफ केबल लगेगी, कम से कम केबल लग रही है हमारे इसमें, तो खर्चा कम आ रहा है, केबल की लेंथ कम हो गई तो खर्चा कम हो गया अपने आप ही। नेक्स्ट, वायर की ब्रेथ भी अच्छी होगी, उतनी ब्रेथ क्या होती है वायर की? ब्रेथ भी तो मतलब वायर कैसी होनी चाहिए उसकी, जो वायर सब एक जैसी होती है, नहीं सर, जैसे हमारी लड़ी लगानी है उस पे डिपेंड होता है ना, एक वायर बिछाई जाएगी इतनी लड़ी चल सकती है। अच्छा, वायर की कैपेसिटी कह रहे हो, तो हियर वी यूज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बोलो तो उसकी कैपेसिटी मतलब स्पीड की बात आएगी, ठीक है। अब हम हल्की केबल का यूज कर रहे हैं तो उसका लोड नहीं उठा पाएगी वो, तो बैंडविड्थ उसकी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ वो चीज है, ठीक है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ दैट उसमें क्या बोलूंगा, क्वालिटी ऑफ वायर, वायर की क्वालिटी कैसी है, वो लो ग्रेड की केबल है तो नहीं उठा पाएगी, ठीक है। पावरफुल केबल, केबल जो आती है बड़ी ब्लैक कलर में जो आएगी है, वो वाली यूज करो। Then easy to extend the main cable. Easy to extend main cable means suppose you want to connect one more computer, two more computers, तो केबल बढ़ा दो, आगे ज्वाइन लगाओ, कनेक्टर लगाओ, बढ़ा दो, तो बस टोटल बनती जाएगी, जितना बड़ा करना है आपने, क्लियर। Then disadvantage of bus topology. Disadvantage of bus topology. First is heavy network traffic can slow a bus considerably. ठीक है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक मीन्स बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों को डेटा सेंड करना है एक साथ, तो फर्स्ट डे सेंड किया, सपोज ये 3 है मान लेते हैं, एक 3 मई को, ठीक है, इसने डेटा सेंड किया और तुरंत दूसरे सेंड कर दिया, अगले दिन भी सेंड कर दिया, तो बाकी 2 का तो वेटिंग में लगा है, डेटा तो अभी एक का चल रहा है, ठीक है। तो मान लो एक का है तो बहुत सारे लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दिखा है हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस, मींस बस टोपोलॉजी कम हो जाएगी जब ट्रैफिक आपका ज्यादा होगा। या रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, रियल लाइफ एक नॉर्मल बस जा रही है, पैसेंजर की संख्या बहुत ज्यादा होगी, एक को यहाँ रोकना है थोड़े 10 मीटर, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे, फिर 10 किलोमीटर आगे रोकना, तो बस रुक रुक के जा रही है, रुक रुक के जा रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी बस की। और एक बस वो है जिसे यहाँ से दिल्ली जाना है और पैसेंजर सारे दिल्ली गए, बीच में कहीं रुकनी नहीं है, स्पीड तेज होगी, ठीक है। तो वही चीज सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईच बैरल कनेक्टर वीकन्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल टाइम टू टाइम इसके वीक होते रहेंगे, ये कहना चाह रहा है। लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ से डेटा यहाँ तक आता है, सिग्नल कुछ वीक हो जाएगा, फिर अगले में जाएगा सिग्नल फिर वीक होगा,
अगले में जाएगा फिर भी होगा। इसके लिए हमारे को एक डिवाइस होनी चाहिए, राइट, कॉल्ड रिपीटर। रिपीटर इज अ डिवाइस विच एम्पलीफाई योर वीकर सिग्नल्स। ये पढ़ाया था मैंने, जो सिग्नल वीक होते जाते हैं उसको फिर रीजनरेट करता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था डिश टीवी केबल वाला, खंभे में लाइट बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, एक खंभे से दूसरे खंभे तक आने तक सिग्नल वीक हो गए, वो रीजनरेट करता है, फिर आगे से फिर रीजनरेट होता है, वैसा ही कुछ। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट अ बस, ऐसा कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सही से सॉल्व होती नहीं है, इजीली सॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। Next is star topology. First you look this diagram. It is just like a star. Means no one computer can directly connect it. कोई भी देखो अपने आप directly नहीं connected है. Here in between at the center there is a hub or maybe a switch. क्या लगा हुआ है? सब स्विच, ये सर्वर मान लो, चाहे आप इसे हब मान लो, चाहे आप इसे स्विच मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। All the computers are connected through this. Means suppose this computer wants to communicate with another computer, ये वाला this computer wants to communicate with this one, तो क्या होगा? First is send his information to the hub, यहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, ये सर्वर के पास जाएगी, and then server और hub will send information to another computer, वो चेक करेगा जाने किसके पास है, ठीक है, डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या? इजली यू कैन रिप्लेस एनी वन ऑफ कंप्यूटर विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर को आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, नेटवर्क में कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। मेरे को समझ में आया कि ये कंप्यूटर खराब हो गया है, ये खराब हो गया, इसको निकाल दो, बस इसका किसी से थोड़ी है, निकाल दो, बाकी चलेंगे, बाकी चलेंगे। और डिसएडवांटेज क्या है? इफ दिस हब और सर्वर गोज डाउन, ये खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो गया। मेन तो यही है ना, इसी के लिए सारा काम हो रहा है, तो ये खराब तो सब खराब। नंबर ऑफ पोर्ट्स पे डिपेंड करेगा, हाउ मेनी पोर्ट्स, ठीक है, 16 पोर्ट, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट्स का आता है, ठीक है, डिपेंड करेगा आपने कौन सा पोर्ट यूज किया। एक में 24 हो सकते हैं, लेकिन बस वाले में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बस टोपोलॉजी यूज व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि उसकी वो लैन बढ़ जाएगी, फिर वहां प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी। In this topology, all the computers are connected to a central connection called hub or switch. ये बात नहीं बोलेगी, बीच में या तो hub मान लो, switch मान लो, या सर्वर मान लो, ठीक है। It acts like this, ठीक है। सर्वर is a powerful computer, but hub is not a computer. हब एक कंप्यूटर नहीं है, हब में पोर्ट है, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं मिलेंगे आपको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, समझ में आया? ठीक है। The data is sent to any other computer, first goes to hub or switch. सही बात, ये बात बोली मैंने। सपोज ये वाला कंप्यूटर था आपका, इसको इस पर डेटा भेजा, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गोज टू द हब और स्विच, और इसके पास जाएगी। आफ्टर दैट देन इट रीडायरेक्ट टू द डिजायर्ड कंप्यूटर। डिजायर्ड कंप्यूटर मींस जिसका एड्रेस होगा तो उसके पास डेटा जाएगा। पहले कहाँ जा रहा है? हब और स्विच के पास। यहाँ से हब और स्विच के पास गया, हब और स्विच के पास जाने के बाद ये पता लगाएगा कि किसके पास जाना था, मींस एड्रेस ऑफ द रिसीवर कौन सा है, इसका एड्रेस लिखा है या इसका एड्रेस लिखा है, इसका एड्रेस, इसका भी एड्रेस होगा, मींस डेस्टिनेशन एड्रेस का वो सेंड कर देगा, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द हब। तो हब से तो कनेक्टेड है, तो भेजेगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? Then advantage of star topology: easy to add, remove workstation by upgrading hub and can be installed easily. सही है, यही बात मैंने बोली थी। Easy to update, अपडेट का मीन्स चाहे आपको ऐड करना है नया तो ऐड कर लो, हटाना है तो हटा लो, मीन्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स। If number of ports are 8 or this time you are having 6 computers and you want to connect one in this network, easily यहाँ पर कनेक्ट लगाओ, कनेक्टर में केबल लगाओ एंड देन सब यूज कर लो, कनेक्ट हो जाएगा। रिमूव करना है,
केबल हटा दो यहाँ से, डिफरेंट हो गया वो, बाकी में कोई प्रॉब्लम आई नहीं आएगी। तो इजी टू ऐड और रिमूव, इस नेटवर्क में आप आसानी से ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्लियर? देन इट इज इजी टू ट्रबल शूट एंड आइसोलेट प्रॉब्लम। आइसोलेट का मतलब होगा एकदम अलग करना। कोरोना चल रहा है, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट का समझ आ गया होगा क्या होता है, अलग कर दो बिल्कुल, ठीक है, अलग कमरे में कर दो, तो वहां से अलग करा एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो सही हो गया तो लगा दिया। देन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, more cabling is required, more cabling is required, why? सारी केबल मुझे सर्वर तक ले जानी है, मतलब हब तक ले जानी है। अब हर बार आपको मैंने एक सेंटर पे लगा दिया, अब उधर से भी केबल आएगी, दूसरा उस कोने पे तो वहां से भी केबल आएगी, उधर से उधर से भी केबल हर जगह से आनी है, ठीक है। केबल आएगी तो नेटवर्क का केबल इंक्रीज करेगी, तो मोर केबल इज रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, ठीक। देन the failure of hub will break down the entire network, ये बात मैंने पहले बोली, ठीक है। हब खराब हो गया, स्विच खराब हो गया, दैट मींस होल सर्वर, होल सिस्टम, होल नेटवर्क गोज डाउन। खराब, बात समझ में आई? ठीक है, सबको आ गई? दो टोपोलॉजी हो गई हमारी, बस और स्टार, ठीक है। नेक्स्ट जो आप कह रहे थे, अब रिंग टोपोलॉजी। Look this. Each computer, each workstation, each node, each device has two neighbors. कुछ भी बोल दो, सबके दो नेबर हैं। ये कंप्यूटर है, इसके दो नेबर हैं। इस वाले कंप्यूटर की बात करूँ, इसके भी दो नेबर्स होंगे, ठीक है। It works in a unidirectional manner. सभी के फॉर्म में चल रहा है, यूनिडायरेक्शन में चलेगा। इसने सेंड किया तो पहले ये इसके, भले इसने इसको सेंड करना है, ऐसा नहीं यहाँ से इधर को भेज देगा, ये चलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा, सारे कंप्यूटर हो जाएगा, लास्ट में इसको मिलेगा, ऐसा कुछ काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। देखो इसकी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला यूनिडायरेक्शनल है, मेरे को ये नहीं पता कि ये क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। बुक में एरो इधर को लगे हैं तो मैंने यूनिडायरेक्शनल इधर को बोल दिया, हो सकता है उधर को चलते हो। आपने देखा होगा फैन, सुनते रहना फैन की बात, कभी कभी फैन में आपने नोटिस किया होगा, जब कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन हमें नहीं मिलता है तो जो वायर होती है वो गलत लग जाती है, तो पंखे की हवा ऊपर जाती है, नीचे को नहीं आती, वो घूमे किधर को भी, उल्टा घूमे चाहे घूमे। अगर उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन हवा ऊपर को आती है, नीचे को नहीं आती, यानी फिर सही लग जाए तो हवा तो नीचे को आ जाती है, ऐसा होता है। तो मीन्स ये फैन भी ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, ये डिपेंड है करता है कि आपने कैसे सेट किया उसे, ठीक है। लेकिन जाएगा यूनिडायरेक्शनली, फैन आप इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, घूमोगे यूनिडायरेक्शनली, मतलब जाएगा ऐसे। आपने ऐसे घुमा दिया तो फिर, और आप इसको भेजना चाह रहे हो तो ये ऐसा चलेगा और लास्ट में इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। ये नहीं है कि आधे में वो ऐसे चल रहा है, आधे में ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात देखी होगी इसमें। एवरी वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ रिंग, देख लो रिंग की फॉर्म में होता है। देन एंड हैज टू नेबर्स टू कम्युनिकेट ऑन, टू नेबर्स, मैं ये बात स्टार्टिंग में बोली मैंने, हर एक नोड के दो नेबर्स होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। देन द डेटा और मैसेज ट्रेवल इन यूनिडायरेक्शनल, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैंने बोली थी कि क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। एरो इधर को लगे थे तो मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया, एरो उधर को लगा तो मैं बोलता एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जाएगा यूनिडायरेक्शनली, ठीक। नेक्स्ट, this network consists of set of repeaters, each repeater is connected between two workstation। यहाँ पर क्या कहता है, हर दो वर्कस्टेशन के बीच में एक रिपीटर होगा, और रिपीटर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई वीकर सिग्नल्स। रिपीटर का कोई काम नहीं होता, सिर्फ जो वीक सिग्नल होते हैं उसको रीजनरेट करने के लिए रिपीटर होता है। जबकि राउटर क्या होता है, राउटर और रिपीटर दोनों सेम रखते हैं। राउटर क्या करेगा, क्रिएट अ वाईफाई नेटवर्क, राउटर से वाईफाई बनता है, ठीक है। राउटर वाईफाई बनाएगा,
एक डिवाइस आप लगा लो घर पे, आपने नेट लगा रखा है, डिवाइस लगा लो घर पे, वो राउटर है तो उससे वाईफाई बन जाएगा, फिर आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क को। लेकिन आपने रिपीटर लगाया तो रिपीटर इज ओनली फॉर एम्पलीफाई वीकर सिग्नल्स, जो कमजोर सिग्नल्स होंगे उनको रीजनरेट करेगा बस। तो यहाँ पर हर एक डिवाइस के बीच में एक रिपीटर लगा होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। Advantage of ring topologies. Cable faults can be easily located, thus making troubleshooting easier. ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। मान लो कहीं केबल में फॉल्ट आता है तो पता चल जाएगा कि दो सिस्टम के बीच में फॉल्ट आ रहा है। Then ring network are moderately easy to install. बना सकते हैं आसानी से। Next disadvantage of ring topology: failure in cable breakdown the entire network, and adding removing of any devices require rewiring. बीच में कहीं से भी कट मार दो, पूरा नेटवर्क नहीं जाएगा, वो गई। अब आप ये मत सोचना, आपके मन में एक क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा, मेरे माइंड में तो आ गया, यहाँ से केबल कट करी है, आप तो सोचोगे ना कि सर केबल तो इनके बीच में कट हुई है, यही तो भेज सकता है, ये तो उसको भेजेगा, इससे इसके बाद तो चले जाएगा, नहीं कनेक्शन लॉस हो गया। हाँ ठीक है, जब सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तभी डेटा सेंड होगा, अदरवाइज नहीं। केबल तो किसी ना किसी को लगानी पड़ेगी, चाहे ट्विस्टेड पेयर लगाओ, चाहे ऑप्टिकल फाइबर लगाओ, चाहे कोएक्सियल लगाओ, सर्किट तो पूरा बनना चाहिए। सर्किट होगा तो जाएगा, डेटा जाएगा। मतलब काट दिया तो कह रहा हूँ, अरे मैं एग्जाम्पल मैं चलो नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। डायग्राम ज्यादा समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। हायरार्किकल इन नेचर, ठीक है, एक नोड के दो ब्रांचेस, एटलीस्ट दो ब्रांचेस, उसके ज्यादा तो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, it is a generalized form of transmission which is a branched cable without closed loop, without closed loop। देखो ट्री में कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, नेक्स्ट सब खुले ही है, ओपन ही है, ठीक है। लूप हमारा क्लोज नहीं हो रहा है, जबकि रिंग में क्लोज हो रहा है, ठीक है। Then all computers are connected so as to form a tree-like structure, ठीक है। दिख भी रहा आपको, ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। Then tree structure has a root node, tree structure has a root node, ठीक है, this is called root node। Then intermediate nodes and leaves, क्या क्या होता है इसमें, रूट नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स और लीव नोड्स। लीव नोड्स लाइक दिस, ये आपने देखा होगा पेड़ में भी पत्ता होता है लास्ट में, है पत्ते के आगे कोई टहनी निकल जाती है, नहीं होती, लीव लास्ट में लीव, ठीक है, लीव नोड्स, ठीक है। और ब्रांच ये बाकी इंटरमीडिएट नोड्स एंड रूट नोड, तीन आ गई। देन रूट नोड इज द मेन और हेड नोड ऑफ द स्ट्रक्चर, मेन और हेड नोड ऑफ द स्ट्रक्चर, यही से शुरू होगा नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड रूट नोड। एंड रिमेनिंग जो लास्ट में लीव नोड्स जो होंगी वो क्या होंगी, लास्ट नोड ऑफ दिस नेटवर्क। एंड लीव्स आर द लास्ट नोड व्हिच हैज नो फर्दर चाइल्ड नोड्स, बात समझ में आ गई, व्हिच नो further child nodes, which has no further child nodes. This structure is arranged in a hierarchical form, top to down hierarchical form. After that, any node can have any number of child nodes, any node can have any number of child nodes। Look this, here in this node having 3 children बोल दो, ठीक है, 2 children है कि नहीं है, ठीक है। किसी में एक ही होगा, इस वाले के एक ही है पर, लेकिन वैसे देखा जाए तो 2 हैं, लेकिन इसका एक भी नहीं है फिर,
ठीक है हैं पापा के 2 बेटे, उस बेटे के 2 बेटे। clear then in this network transmission from one workstation is received by all workstation on the network बात वही कह रहा है कि एक सेंड के सभी रिसीव कर सकते हैं ठीक है लेकिन डिस्प्ले बना हुआ वो रिसीव करेगा बाकी नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट advantage of tree topologies the failure of one workstation does not affect the overall network जो खराब हो उसको बता दो हैं मैं रूट होगा तो सब खराब होंगे वो तो तुम्हें पता ही है रूट नोट खराब तो सभी खराब होने चाहिए इंटरमीडिएट हो गया तो कोई बीच वाला बीच वाला उससे नीचे के खराब होंगे इसमें ऐसा नहीं है उसी से कनेक्ट लेकिन जब लिसन लिसन इंटरमीडिएट ये खराब हुआ तो इधर का काम करेगा इधर काम करेगा इधर वाला काम नहीं करेंगे ठीक है then it is supported by several hardware and software vendors ज्यादातर से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स यूज करते हैं disadvantage of tree topology it is costly and complex it is more difficult to configure disadvantages हाइब्रिड बना दिया हाइब्रिड में दो कॉम्बिनेशन लाके ठीक है नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी तो सबसे खतरनाक डेटा कहीं भी चले जाएगा मतलब फ्लैश हो जाता ये देख लो प्रिज्म डायग्राम दिख रहा होगा ना बट देख अरे डायमंड with each one computer connected to all the computers हर एक कंप्यूटर सभी से कनेक्ट होगा देखो this computer connected with this one this नीचे दाएं this और ऐसे वायर बहुत सारी है एक वायर नहीं बहुत सारी वायर तो कनेक्टेड है तो देखो इसमें the mesh topology connects all devices means all computers to each other for redundancy and fault tolerance it is used in when to interconnect LANs ठीक है LAN को इंटरकनेक्ट करने के लिए we will use this and for mission critical network like those used by banks and financial institution ये नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते मैथ को ठीक है इज यूज्ड बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है और भी गवर्नमेंट एजेंसी जो होंगी वो यूज करेंगे मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन वो यूज करेंगे नॉर्मल लोग जो है ऑफिस में ठीक है होम में स्कूल्स में उसका यूज नहीं होगा then implementing the mesh topology is expensive and difficult for the advantage of mesh topology fault tolerance granted communication channel capacity easy to troubleshoot और फिर डिसएडवांटेज लिखा है डिफिकल्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिडंडेंट लिंक यही चीज लिखी हुई है ऑफिस में यूज हो सकते हैं